Hi guys, in this lecture we shall solve a problem. So first I will read out the question of this problem. The figure shows an epicyclic gear train. So here they have given the figure. So this is the given figure of the epicyclic gear train. In this gear train, pinion A. Pinion means smallest gear in the arrangement. Pinion means smallest gear. Okay. Pinion A has 15 teeth and is rigidly fixed in the motor shaft. So this gear A has 15 teeth and it is rigidly fixed in the motor shaft, means this pinion A is mounted on the motor shaft. So here this is the gear A, it has 15 teeth and it is fixed on the motor shaft. It is mounted on the motor shaft at this point. Okay, fixed, rigidly fixed means mounted. Okay, rigidly fixed means don't take speed of A as 0. Rigidly fixed means mounted. Okay, next the wheel B has 20 teeth. So here in the gear train, this is the wheel B, this has 20 teeth and meshes with A and also with annulus fixed wheel D. So this B is meshing with A and also it is meshing with annulus fixed wheel D. Annulus wheel means internal gear. Annulus means internal gear. Here I written annulus gear is equal to internal gear. So it means this gear B is meshing with A as well as internal gear D, and this internal gear D is fixed. Fixed means the speed of this wheel D is 0. Okay, so here I can see this is gear B. Okay, this is gear B, it is meshing with A as well as it is meshing with A at this point, you can see here. Okay, next this gear is also meshing with this internal gear D. This is this D is an internal gear, means annulus wheel. Okay, this B is meshing with this D at this point. Okay, next pinion C. So there is one more pinion in the arrangement, that is C. It has 15 teeth and is integrally B, means this B gear is a integral part of gear C. It means C and B are compound gears. C and B are integrally B means this C and B are compound gears. Here I have written B, C are compound gears. Okay, so this pinion has 15 teeth and is integrally B. C has 15 teeth and this C and this gear B is an integral part of C. It means C and B are compound gears. So this is gear C. This dotted circle is a gear C. This has 15 teeth. Okay, and this C and B are compound gears. Gear C meshes with annulus wheel E. So there is one more annulus wheel E. There is one more annulus wheel. Annulus wheel means internal wheel. That internal gear is E. Okay, this gear C is meshing with that internal wheel E. Here this is gear C. This gear C is meshing with, there is one more internal wheel or annulus wheel, that is E. So this C is meshing with this E at this point. C is meshing with E at this point. Here E is a annulus wheel, means internal gear. Which is keyed to the machine shaft? So this annulus wheel E, okay, which is keyed to the machine shaft. Keyed means connected. Keyed means connected. So this wheel E, which is keyed to the machine shaft. Keyed to the machine shaft means connected. Wheel E is connected to the machine shaft. Here motor shaft is different, machine shaft is different. A is connected to motor shaft and here wheel E is connected to machine shaft. Once again, don't get confused here. Motor shaft is different, machine shaft is different. On motor shaft A is mounted. On machine shaft wheel E is mounted. Okay. The arm rotates about the same shaft on which A is fixed. So there is an arm here which is rotating on the same shaft on which A is fixed. जहाँ पे A fix है ना, वहाँ पे ही arm fix है और arm वहीं पे rotate हो रहा है. And
and carries the compound wheel BC, and this arm carries the compound wheel BC. The arm rotates about the same shaft on which A is fixed and carries the compound wheel BC. This arm carries the compound wheel BC. So here you can see this is the arm, this is arm. Okay, so this arm is rotating about the same shaft of on which A is fixed, means this arm is rotating about this point. Okay, and this arm carries compound wheels B and C. So here you can see the sentence again. The arm rotates about the same shaft on which A is fixed, means this arm is rotating about this point and carries the compound wheel BC, and this arm carries the compound wheel B and C. Okay, next, if the motor runs at 100 rpm, so here they have given the speed of motor. If the motor runs at 100 rpm, if here what they are given यहाँ पे मोटर का स्पीड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटर को जो गियर कनेक्टेड है ना, तो उसका भी, उस गियर का भी स्पीड सेम ही रहेगा जितना मोटर का है. ओके, यहाँ पे गियर का स्पीड देने के बदले में मोटर का स्पीड दिया हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि मोटर को जो गियर कनेक्टेड है उसका स्पीड और मोटर का स्पीड सेम रहेगा. ओके, यहाँ पे देखो मोटर का स्पीड दिया हुआ है, इफ द मोटर रन्स एट 100 rpm, तो इसका मतलब मोटर को जो गियर कनेक्टेड है उसका स्पीड भी 100 rpm ही रहेगा. यहाँ पे मोटर को पिनियन ए मतलब गियर ए कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गियर ए का स्पीड 100 rpm हुआ. गियर ए जो है नी मोटर शाफ्ट को कनेक्टेड है, ठीक है. तो यहाँ पे मोटर का स्पीड दिया हुआ है 100 rpm, तो इसका मतलब हुआ मोटर और गियर ए का स्पीड भी सेम होगा. ओके, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो गियर ऑफ ए का स्पीड जो है ना 100 rpm लेना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ मशीन शाफ्ट. यहाँ पे देखो मशीन शाफ्ट का स्पीड फाइंड करने के लिए आपको मशीन शाफ्ट पे कौन सा गियर कनेक्टेड है ना उसका स्पीड फाइंड करना है. तो उस गियर का स्पीड फाइंड किए तो आपको ऑटोमेटिकली मशीन शाफ्ट का भी स्पीड मिल जाएगा. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं वो, फाइंड द स्पीड ऑफ मशीन शाफ्ट. मशीन शाफ्ट पे कौन सा गियर कनेक्टेड है. यहाँ पे देखो व्हील ई इज विच इज की टू द मशीन शाफ्ट, मतलब ई इज कनेक्टेड टू द मशीन शाफ्ट. तो यहाँ पे मशीन शाफ्ट का स्पीड पूछे हैं यहाँ पे, तो अगर आप व्हील ई का स्पीड फाइंड किए ना तो ऑटोमेटिकली वही स्पीड मशीन शाफ्ट का भी रहेगा. तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम में क्या करेंगे, व्हील ई का स्पीड फाइंड करेंगे. ठीक है, वही स्पीड जो है नी मशीन शाफ्ट का भी रहेगा, क्योंकि व्हील ई जो है नी मशीन शाफ्ट पे कनेक्टेड है. ओके, वंस अगेन आई विल रिपीट हियर. यहाँ पे मशीन शाफ्ट का स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है. ठीक है, तो मशीन शाफ्ट पे व्हील ई कनेक्टेड है. ठीक है, अगर आप व्हील ई का स्पीड फाइंड किए तो आपको वही स्पीड मशीन शाफ्ट का भी रहेगा. ठीक है, तो हम प्रॉब्लम में व्हील ई का स्पीड फाइंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड ऑल्सो द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द मशीन शाफ्ट इफ द मोटर डेवलप्स ए टॉर्क ऑफ 100 rpm. ये टॉर्क के बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ. ठीक है, सो नाउ first we shall write down the given data here. First once again I will read out the question. The figure shows an epicyclic gear train. Pinion A has 15 teeth. So this gear A is having 15 teeth. For that TA is equal to 15. And is rigidly fixed in the motor shaft. यहाँ पे rigidly fixed बोले तो speed of A is not zero. Rigidly fixed बोले तो सिर्फ mounted है. Fixed बोले तो zero speed zero नहीं. Okay. Next, the wheel B has 20 teeth. So it means TB is equal to 20. And meshes with A also with annulus fixed wheel D. यहाँ पे देखो fixed wheel D करके दिया है. Fixed wheel D बोले तो ये fix है, wheel D है नहीं, fix है, मतलब इसका स्पीड होगा 0. It means ND is equal to 0. Okay, next, pinion C has 15 teeth. So TC is equal to 15. And is integrally B and C are compound gears. Gear C meshes with annulus wheel E, which is key to the machine shaft. The arm rotates about the same shaft on which A is fixed and carries the compound wheel BC if the motor runs at 100 rpm.
सो यहाँ पे देखो मोटर पे पिनियन ए माउंटेड है। यहाँ पे देखो मतलब गियर ए जो है ने मोटर शाफ्ट को कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मोटर शाफ्ट का स्पीड दिए हुए हैं, तो मोटर शाफ्ट का और गियर ए का स्पीड सेम होगा क्योंकि गियर ए मोटर शाफ्ट पे माउंटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सिंस गियर ए इज फिक्स्ड टू दी मोटर शाफ्ट, मतलब गियर ए जो है ना मोटर शाफ्ट को कनेक्टेड है, तो इसलिए गियर ए और मोटर शाफ्ट का स्पीड दोनों एक ही रहेगा। यहाँ पे वही लिखा है, द स्पीड ऑफ गियर ए एंड मोटर शाफ्ट विल बी सेम, दैट इज N इज इक्वल टू 100 RPM। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस 100 RPM करके ही लेता हूँ। अब इवन माइनस 100 RPM करके भी लिए तो भी चलेगा, बट यूजुअली रोटेशन डायरेक्शन कुछ मेंशन नहीं किया तो हम उसको वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ मशीन शाफ्ट। यहाँ पे मशीन शाफ्ट का स्पीड फाइंड करने के लिए बोले, तो इसका मतलब मशीन शाफ्ट को जो गियर कनेक्टेड है ना, तो उस गियर का स्पीड आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ मशीन शाफ्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मशीन शाफ्ट पे कौन सा गियर कनेक्टेड है तो उसका स्पीड वो पूछ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सिंस व्हील ई इज कीड टू दी, कीड बोले तो कनेक्टेड, अटैच्ड। ओके, सिंस व्हील ई इज कीड टू मशीन शाफ्ट, द स्पीड ऑफ व्हील ई एंड मशीन शाफ्ट विल बी सेम। यहाँ पे देखो व्हील ई मशीन शाफ्ट को कनेक्टेड है, तो इसलिए मशीन शाफ्ट का स्पीड और व्हील ई का स्पीड सेम रहेगा, वही यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है। तो हमको वही फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ई आप स्पीड ऑफ व्हील ई फाइंड किए तो वही स्पीड मशीन शाफ्ट का भी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम में स्पीड ऑफ ई फाइंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉर्क के बारे में जो है उसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टीथ गिवन में ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया है, मगर यहाँ पे गियर ट्रेन में और दो गियर्स हैं डी और ई, इसके नंबर ऑफ टीथ हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट वी शैल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील ई एंड डी। तो उसके लिए अगेन आई एम यूजिंग दिस डायग्राम एंड ऑल्सो आई विल यूज द रेडियस फार्मूला। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे किए हैं ये रेडियस लेके वैसे आपको नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है यहाँ पे भी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील फाइंड करता हूँ, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील ई, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील ई फाइंड करने के लिए यहाँ पे व्हील ई का रेडियस कंसिडर करता हूँ। व्हील ई का रेडियस यहाँ से यहाँ तक, व्हील ई ये है, व्हील ई मतलब गियर ई ये है, मतलब यहाँ से यहाँ होगा आर ई, यहाँ से यहाँ होगा आर ई, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आर ई। ओके, यहाँ पे वही लिखा हुआ आर ई, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कैसे स्प्लिट करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये आर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रफली आर ई, यहाँ से यहाँ तक आर ई होगा, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ, यहाँ से यहाँ आर ए होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक आर ई। ओके, यहाँ से यहाँ तक आर ई हुआ। अभी इसको स्प्लिट करता हूँ मैं, कैसे स्प्लिट करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस ऑफ गियर होगा, तो इसलिए आर ए। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है नी गियर बी का रेडियस है, गियर बी का रेडियस है, तो इसलिए प्लस आर बी। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है नी, यहाँ से यहाँ तक जो है नी ये गियर सी का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक गियर सी, ये वाला गियर सी है, तो यहाँ से यहाँ तक गियर सी का रेडियस होगा, तो प्लस आर सी, आर ई इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। आर ए यहाँ से यहाँ तक, आर बी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आर सी, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा टोटल हुआ, ये रेडियस ऑफ व्हील ई है। ओके, मैं ये इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मॉड्यूल का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूल को सेम है करके अज्यूम करके डायरेक्टली क्या करते हैं, जहाँ पे रेडियस है वहाँ पे नंबर टी करके लिख देते हैं, मतलब नंबर ऑफ टीथ। जहाँ पे आर ई है वहाँ पे टी ई, जहाँ पे आर ए है वहाँ पे टी ए, जहाँ पे आर बी है वहाँ पे टी बी, जहाँ पे आर सी है वहाँ पे टी सी। दिस आई हैव डिस्कस्ड इन दी, ये कैसे आया पहले प्रॉब्लम से बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी ए का वैल्यू है 15, टी बी का है 20, टी सी का है 15, तो टी ई का वैल्यू होगा 50। ओके,
नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील होगा 50। नेक्स्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील डी फाइंड करना है, इसके नंबर ऑफ टीथ फाइंड करना है। तो यहाँ मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है ना रेडियस गियर डी का रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ना गियर डी का रेडियस होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर डी इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर ए होगा, यहाँ से यहाँ तक आर ए, क्योंकि ये वाला जो है ना गियर ए है, यहाँ से यहाँ तक गियर ए का रेडियस होगा। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ना गियर बी का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक गियर बी का रेडियस है, तो प्लस आर बी। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, तो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक अगेन दिस इज द रेडियस ऑफ गियर बी, अगेन ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना गियर बी का रेडियस है, तो अगेन प्लस आर बी। ठीक है, आर डी यहाँ पे और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आर डी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आर ए, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आर बी, नेक्स्ट अगेन यहाँ से यहाँ तक आर बी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी। ओके, यहीं यहाँ पे इसको मैं आर डी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी 2 है तो इसलिए 2 आर बी करके लिख सकता हूँ। ओके, सो आर डी इज इक्वल टू आर ए प्लस 2 आर बी। सो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील डी इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू आर ए प्लस 2 आर बी, ये वाला ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे भी देखो मॉडल सेम है करके एज्यूम किए हैं हम, मतलब मॉडल का वैल्यू तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए डायरेक्ट जहाँ जहाँ पे रेडियस टर्म है नंबर ऑफ टीथ से रिप्लेस कर दो। आर डी जो है टी डी, आर ए जो है वहाँ पे टी ए, आर बी जहाँ पे टी बी। ओके, ये कैसे आया कैसे आता है आपको पहले प्रॉब्लम में बता चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी डी इज इक्वल टू टी ए 15 है, टू एज इट इज, टी बी का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 सब्स्टिट्यूट करो। ओके, सिंप्लीफाई करो, टी डी इज इक्वल टू 55 हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है, हमको स्पीड ऑफ ई फाइंड करना है, स्पीड ऑफ व्हील ई। तो इसके लिए क्या करना है, टैबुलर कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, टैबुलर कॉलम। ओके, अगेन द सेम प्रोसीजर, सीरियल नंबर, कंडीशन ऑफ मोशन, रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है देख लो, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है पहले देख लो, उसके हिसाब से सब कॉलम्स बनाना है आपको रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। गियर ए 1 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बी और सी कंपाउंड गियर्स है 2, मतलब बी और सी कंपाउंड गियर्स है तो इसलिए हमको एक ही कॉलम कंसिडर करना पड़ेगा, 2 हो गए। नेक्स्ट गियर ई 3, ओके। नेक्स्ट गियर डी 4 एंड आर्म 5, मतलब 4 एलिमेंट्स हो गए, मतलब 4 कॉलम्स सब कॉलम्स बनाना है रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स में। ओके, यहाँ पे देखो सॉरी 5 बनाना है। नो लेट अस काउंट वंस अगेन। गियर ए 1 हो गया, गियर बी और सी दोनों कंपाउंड गियर्स हैं 2 हो गए, ओके मतलब दोनों को हम एक ही कंसिडर करेंगे, 2 हो गया। ये डी 3 हो गया, ओके। ई 4 हो गया एंड आर्म 5, मतलब टोटल 5 सब कॉलम्स बनाना है टैबलेट। यहाँ पे रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट में 5 सब कॉलम्स बनाना है, ओके। और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। गियर ए 1 हो गया, गियर बी और सी दोनों को हम एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि कंपाउंड गियर्स हैं। 2 हो गए, यहाँ पे दोनों को एक ही कंसिडर किए तो 1 2 हो गए। नेक्स्ट गियर डी 3, गियर ई 4 और आर्म 5, तो 5 सब कॉलम्स बनाना है। यहाँ पे देखो सब 5 सब कॉलम्स 1 2 3 4 5, ओके। तो ऑलवेज इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट द आर्म, इन द नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे गियर कौन सा गियर लिखना है, तो कौन सा आर्म के बाद कौन सा गियर लिखना है आपको यहाँ पे गियर ट्रेन देखना पड़ेगा, इसमें इंटरनल गियर है या नहीं ये देखना पड़ेगा। यस, यहाँ पे 2 इंटरनल गियर्स हैं, ये ई और डी 2 इंटरनल गियर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमको लार्जेस्ट गियर कंसिडर, लार्जेस्ट गियर इन दी गियर ट्रेन को लिखना है आर्म के बाद। यहाँ पे देखो इंटरनल गियर है इस गियर ट्रेन में, 2 इंटरनल गियर्स हैं ई और डी, तो इसलिए आर्म के बाद हमको लार्जर गियर लिखना है। यहाँ पे देखो लार्जर गियर जो है ना डी है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है 55 है, तो आर्म के बाद गियर डी लिखेंगे, ओके। गियर डी लिखने के बाद
अभी सीक्वेंस में जाना है। गियर डी किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है। गियर डी यहाँ पे देखो, गियर डी देखो बी के साथ मैच हो रहा है। गियर डी यहाँ पे बी के साथ मैच हो रहा है, तो बी और सी कंपाउंड गियर से, तो नेक्स्ट कॉलम में आपको कंपाउंड गियर बी सी लिखना है। कंपाउंड गियर बी सी लिखना है। डी जो है नहीं बी के साथ मैच हो रहा है और बी और सी कंपाउंड गियर से, तो दोनों एक ही कॉलम में लिखना है, गियर बी सी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉलम में जो गियर लिखना है नहीं, वो लिखने के लिए आपको कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है, बी और सी कंपाउंड गियर से। बी यहाँ पे देखो ए के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे गियर ए करके लिखो, गियर ए करके लिखो। एंड हियर और एक कंपाउंड गियर है सी, ये जो है नी ई के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे ई के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है, गियर ई। और एक बार बता रहा हूँ मैं, यहाँ ये गियर कंपाउंड गियर बीसी लिखने के बाद कंपाउंड गियर बीसी किसके साथ मैच हो रहा है ना, उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर बी जो है नी ए के साथ मैच हो रहा है, ओके, इसको यहाँ पे लिख दिया मैं गियर ए करके, ओके। और कंपाउंड गियर सी, कंपाउंड गियर और एक कंपाउंड गियर है ना सी, ये जो है ना ई के साथ मैच हो रहा है, तो ये जो है ये यहाँ पे मैच हो रहा है, देखो सी जो है ना ई के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, तो गियर ई को है ना नेक्स्ट कॉलम में लिखता हूँ मैं, ये जो है गियर ई। देखो और यहाँ पे देखो सभी गियर्स हम टैबलर कॉलम में लिख दिए, ये सभी जो भी गियर्स है, आर्म्स है, एलिमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे हम कॉलम्स में लिख दिए सभी, ठीक है। नेक्स्ट अभी कंडीशन लिखना है। फर्स्ट कंडीशन, आर्म इज फिक्स्ड, ओके, ये तो फिक्स, आर्म फिक्स रहेगा हमेशा, मतलब इसका स्पीड होगा 0। नेक्स्ट आर्म के बाद कौन सा गियर है, गियर डी है, तो इसको हमको +1 रेवोल्यूशन मोशन देना है। तो यहाँ पे देखो गियर डी मेक्स +1 रेवोल्यूशन मोशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CCW लिखा है। इन शॉर्ट CCW बोले तो काउंटर क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये भरना पड़ेगा, ओके। आर्म इज फिक्स बोले तो आर्म का स्पीड क्या हुआ, 0 हो गया। नेक्स्ट गियर डी मेक्स +1 रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे कंडीशन में गियर डी का भी स्पीड दिया हुआ है, दैट इज +1, तो यहाँ पे +1 लिख दो, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड गियर BC का स्पीड लिखना है, कंपाउंड गियर BC का स्पीड लिखना है। यहाँ पे देखो कंपाउंड गियर D के साथ भी मैच हो रहा है, A के साथ भी मैच हो रहा है, यहाँ पे बता चुका हूँ मैं पहले भी। कंपाउंड गियर A के साथ भी मैच हो रहा है, E के साथ भी मैच हो रहा है, सॉरी ये देखो कंपाउंड गियर B जो है ना A के साथ भी मैच हो रहा है, D के साथ भी मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो अभी मुझे और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो गियर BC ये जो है नी कंपाउंड गियर है, ये कंपाउंड गियर जो है ना इसका स्पीड लिखने के लिए ये कंपाउंड गियर किसके साथ मैच हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ये जो कंपाउंड गियर जो है नी D के साथ भी मैच हो रहा है और A के साथ भी मैच हो रहा है। यहाँ पे बताता हूँ, देखो कंपाउंड गियर B ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B जो है नी D के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, D के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है और A के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। ये कंपाउंड गियर B D के साथ यहाँ मैच हो रहा है, D के साथ यहाँ मैच हो रहा है, A के साथ यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कंपाउंड गियर B जो है नी D के साथ भी मैच हो रहा है, A के साथ भी मैच हो रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंड गियर BC का स्पीड लिखने के लिए जो है नी, लिखने के लिए प्रीवियस कॉलम में कौन सा गियर लिखे है ना उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करना है। नो डाउट ये कंपाउंड गियर BC जो है नी D के साथ भी मैच हो रहा है, A के साथ भी मैच हो रहा है, मगर प्रीवियस कॉलम में जो गियर लिखे हैं नी उसके साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करके उसका स्पीड, कंपाउंड गियर का स्पीड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्रीवियस कॉलम में गियर D लिखे हैं हम, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कंपाउंड गियर D के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर करेंगे, ओके। तो अभी इसका स्पीड लिखेंगे, कंपाउंड गियर का स्पीड लिखेंगे। यहाँ पे देखो D के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किया, तो इसके नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे ऊपर लिख दो, TD करके, ओके। इसके नंबर ऑफ टीथ ऊपर लिख लो न्यूमरेटर में। नेक्स्ट आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, कंपाउंड गियर का स्पीड लिख रहे हैं, मगर कंपाउंड गियर में 2 गियर्स हैं B और C, मगर D के साथ मैच हो रहा है करके कंसिडर किया आप। कंपाउंड गियर जो है नी D के साथ मैच हो रहा है करके ये लिख रहे हैं। यहाँ पे D कौन से कंपाउंड गियर के साथ मैच हो रहा है वो देखना है। D जो है नी B के साथ मैच हो रहा है क्या C के साथ मैच हो रहा है, D जो है नी B के साथ मैच हो रहा है,
डी जो है बी के साथ मैश हो रहा है, तो इसके बी के नंबर ऑफ टीथ जो है नी यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी जो है नी बी के साथ मैश हो रहा है। ओके, डी जो है नी बी के साथ मैश हो रहा है, तो नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे बी के लिखना है नीचे। इनटू यहाँ पे हम क्या कंसिडर किया, कंपाउंड गियर डी के साथ मैश हो रहा है करके कंसिडर किया, तो इसका मैग्नीट्यूड है, प्लस साइन छोड़ के मैग्नीट्यूड 1 जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट ये प्लस साइन देखो, ये प्लस साइन कैसे आया, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या कंसिडर किए, कंपाउंड गियर डी के साथ मैश हो रहा है करके कंसिडर किया, मतलब कंपाउंड गियर बी और डी मैश हो रहा है करके कंसिडर किया। बी और डी कैसे मैश हो रहे हैं वो देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और डी यहाँ पे दोनों इंटरनल मैश हो रहे हैं, दोनों इंटरनल मैश हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ डी का जो भी डायरेक्शन है, डी जो डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वही डायरेक्शन में बी भी घूमेगा। जब इंटरनल मैशिंग रहता है, मतलब दो गियर जब इंटरनली मैश होते हैं तो दोनों के डायरेक्शन सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देखो कंडीशन के हिसाब से, एज पर द कंडीशन, हम गियर डी का जो है ना डायरेक्शन है प्लस लें, पॉजिटिव, तो इसका मतलब गियर डी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है करके ले रहे हैं। ठीक है, तो गियर डी और गियर बी इंटरनली मैश हो रहा है। अभी मैं बता चुका हूँ, गियर डी और गियर बी इंटरनली मैश हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे हम डी का डायरेक्शन पॉजिटिव ले आए हैं, तो इसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो डी और बी इंटरनली मैश हो रहे हैं। जब when two gears are meshing internally, both the direction of both the gears will be same. ओके, सो ये हुआ प्लस, समझ में। सो नेक्स्ट अभी गियर ए का स्पीड लिखना है। यहाँ पे गियर ए है, इसका स्पीड लिखना है। तो इसका स्पीड लिखने के लिए गियर ए किसके साथ मैश हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे देखो गियर ए किसके साथ मैश हो रहा है, सिर्फ बी के साथ मैश हो रहा है। यहाँ पे गियर ए सिर्फ बी के साथ मैश हो रहा है, गियर ए बी के साथ मैश हो रहा है। तो इसके नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे ऊपर लिखो न्यूमरेटर में। ओके, आप गियर ए का स्पीड लिख रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे नीचे लिखो। ओके, इनटू गियर ए बी के साथ मैश हो रहा है, गियर ए जो है ना बी के साथ मैश हो रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड गियर बी का, मतलब गियर बी का मैग्नीट्यूड जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। गियर बी का मैग्नीट्यूड यही है, गियर बी का मैग्नीट्यूड यही है। ठीक है, तो ये टी डी बाई टी बी इंटू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे टी डी बाई टी बी इंटू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन कैसे आएगा माइनस साइन कैसे आएगा बोले तो यहाँ पे गियर ए किसके साथ मैश हो रहा है, गियर ए जो है ना बी के साथ मैश हो रहा है। तो ए और बी कैसे मैश हो रहा है यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। ए और बी दोनों एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों एक्सटर्नल गियर्स हैं, दोनों एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं, मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे टैबुलर कॉलम के हिसाब से, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे टैबुलर कॉलम में ऑलरेडी हम गियर बी का डायरेक्शन जो है प्लस करके लिया हुआ है, गियर बी का डायरेक्शन जो है प्लस करके लिया है। इसका मतलब गियर बी जो है नी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, गियर बी जो है नी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ये गियर बी है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। गियर बी और ए एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं, गियर बी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है बोले तो गियर ए क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो जब गियर ए क्लॉकवाइज में घूम रहा है बोले तो इसका डायरेक्शन हो माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस, क्योंकि गियर ए क्लॉकवाइज में घूम रहा है। गियर ए और बी एक्सटर्नली मैश हो रहे हैं, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। गियर बी का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इसका माइनस आएगा। यहाँ पे देखो अगर कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। टी बी ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल किए भी तो चलेगा। नेक्स्ट गेरी है, तो इसका स्पीड लिखने के लिए गेरी किसके साथ मैश हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। गेरी किसके साथ मैश हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो गियर ई ये वाला है, गियर ई ये है, गियर ई जो है नी यहाँ पे देखो सी के साथ मैश हो रहा है, यहाँ पे गियर ई सी के साथ मैश हो रहा है। ओके, गियर ई सी के साथ मैश हो रहा है।
गेयर ई है ना सी के साथ मैच हो रहा है, तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गेयर सी यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखना है। गेयर ई जो है ना सी के साथ मैच हो रहा है, तो सी के नंबर ऑफ टीथ न्यूमरेटर में लिखो ऊपर। ओके, नेक्स्ट आप कौन से गियर का लिख रहे हैं, गियर ई का लिख रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ टीथ नीचे लिखो न्यूमरेटर में। ओके, ये होगा इनटू गियर ई किसके साथ मैच हो रहा है, गियर ई सी के साथ मैच हो रहा है। सी और बी है ना कंपाउंड गियर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा। गियर ई जो है नी सी के साथ मैच हो रहा है और सी का कॉलम यही है, मतलब सी का मैग्नीट्यूड है नी यही रहेगा, सी का मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा। ये मैग्नीट्यूड है नी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, टी डी बाई टी बी इंटू 1, टी डी बाई टी बी इंटू 1। ओके, यहाँ पे प्लस करके साइन कंसिडर करें, प्लस। यहाँ पे प्लस क्यों बोले, तो ई और सी इंटरनली मैच हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई और सी यहाँ पे इंटरनली मैच हो रहे हैं। जब दो गियर्स इंटरनली मैच हो रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे आप सी गियर यहाँ पे देखो सी गियर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिए हैं, तो यही डायरेक्शन ई का भी रहेगा क्योंकि दोनों इंटरनली मैच हो रहे हैं। यहाँ पे प्लस करके लिया है सी का, तो यहाँ पे भी ई का भी प्लस करके ही लिए हैं। ओके, दोनों इंटरनली मैच हो रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन।